Am I audible? Yes, ma'am. Yes. I welcome you all in our day 3 session first. Uh, the expert for your today's session is Professor R.H. Rathod. I give just small introduction of R.H. Rathod, sir. Professor R.H. Rathod, sir, obtained his bachelor degree in computer science and engineering from Santa Gadge Baba, Amravati University in the year 1993-94. Uh, After that, he joined the SNGB Polytechnic, Chandwad in the year 1996 as a lecturer and served there up to 2004. After serving 8 years in this institute, he joined Dr. Panjabrao Deshmukh Polytechnic Amravati in 2004. Since 2004, he has been working as a lecturer in the Department of Computer Engineering. He obtained his master degree in computer science and engineering from Santa Gadge Baba Amravati University in 2014. He is an active member of the syllabus setting committee PPOS in Government Polytechnic Amravati. Nowadays, he is also working as an academic coordinator in the institute. He has total 25 years of teaching experience. Now I request Professor Rathod sir, please continue the session. Good morning to all. My session is about use of Moodle as a teaching tool. Now, in this pandemic era, since last 1.5 years, we are facing the same problem, that is lockdown problem and online teaching. We are started. So, in this particular session, we are talking about the teaching tool, a special teaching tool. Yesterday, Dr. M.R. Sanghvi sir has already discussed about the various teaching tools, and these teaching tools are very beneficial to all of the like you and me people who teaches online. Now, in the next 2 or 3 months after that, who knows, offline classes may start. So that is also beneficial in offline classes. So here, without wasting time, I will go and share one screen that is about the. Okay, I will share the entire screen so that you can get presentation. Is it visible to you? Yes, sir. If you answer, then that will be encouragement for me that I'm audible and visible also, and this screen is also visible to you, so that I can continue. So please try to answer whenever I ask you. क्या ये विजिबल है आप सभी लोगों को? Yes, sir. Okay, thank you, madam. So here the first thing is that content, and another thing is that contest. So directly going to Moodle, I will go for the background of this learning management system, LMS. So the educational model of the past operates on the assumptions that content was king. तो ये तो पिछले पास्ट ईयर्स में एजुकेशनल मॉडल जब हम यूज करते थे, तो ये तो कंटेंट क्या था, एक मेजर एस्पेक्ट था. Nowadays, in a world of rapid information growth, it is a context that matters. So context is a key. So content, that means what actually we are delivering via lecture.
what we are actually delivering. And context is nothing but a reference through which context we are delivering. That means today's topic is Moodle, and that is the context. Okay, so your student always uh, sees about this context, not the content. Means in online education, your student always seek for the context, not the content. So when we talk about MOOC, uh, that means massive open online course, that is a free online courses available. So three things are to be remember, that is designing how we are going to design the particular uh, lectures content, developing how we are going to develop that particular content, and with respect to the contest, then delivering how will you going to deliver that lecture. So this Moodle offer all these things when we talk about the MOOCs, that is a massive open online course. So especially whenever we are preparing online sessions or courses, one very important thing we have to keep in mind that effective curriculum designing through technology is needed to be highlighted, isn't it? So here technology has got its power assistance in terms of helping us with different aspects. So that is only for help. That technology we are using for help only. So this, therefore, center is our curriculum. यहाँ पे सेंटर क्या है हमारा? करिकुलम है. हमारा क्या है यहाँ पे? सिलेबस है, या फिर हम कहेंगे कंटेंट जो हमने डेवलप किया है, जो हम डिलीवर करने जा रहे हैं, या हम कहेंगे जो भी हमने मटेरियल लेक्चर के लिए हमने तैयार किया है. सो दैट इज द center. So domain of learning and aspect of curriculum. So actually you need that means you and me need as a teacher that become important. Second is instructional planning and delivery. So instructional planning is also needed. Okay, role of media in classroom communication and technology enabled learning and self learning. Actually, from last 1.5 years, self learning is motivated by the teacher to the student and student itself also. And next is assessment and evaluation. So these things we have to keep in mind. So we have to integrate digital learning in the classroom practices whenever it is, wherever it is, whether it is a virtual classroom or face-to-face classroom. So we need to understand these things. So as a teacher, when we go online, offline teaching, we any course, we can say some basic things like this domain of learning, instructional planning, role of media in classroom communication, assessment and evaluation. We have to keep in mind these things. And as a teacher, you always uses these things in mind, that what we have to do in the classroom, in online classroom or offline classroom. So my lecture is totally depends on this LMS, that is learning management system. Today's session is totally depend on this learning management system. What is this learning management system? So before that, we can say, as a me, I have to transform from one version, me 1.0 to me 2.0. So simply
we can say that. That means when as a teacher, I have to transform from me 1.0 to me 2.0. What is this me? Me means myself. One means what? That is my first version. My first version. How I am teaching, how my students get me, how my student understood me. So that is my first version. And in online classes, I have to transform from this version to this version. That means ME 2.0. So in ME 2.0, that means ME, not ME actually, this is me. Me 2.0, I have to transform. ट्रांसफर करने से क्या होगा कि मैं खुद को अपडेट कर पाऊंगा. मैंने अपडेट किया तो मेरा वर्जन चेंज होगा. अदरवाइज जो मैंने ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ऑनलाइन में वो पढ़ाना चाहता हूँ, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टूडेंट को समझने के लिए. Everybody should transform themselves from me 1.0 to me 2.0, updated version of self. So let us move towards the LMS. LMS management system. What is this LMS? It is a broad term used to describe software tools designed to manage user learning interventions and provide access to online learning services for student, teacher, and administrator. I think as a teacher, everybody knows this LMS. Everybody uses platform to teach to students, and student also learn from your platform. So that is whatever you are using, learning management system. Some teacher, if I ask some teacher, they use XYZ platform. Any other student teach, if I ask to any other teacher, he also uses or she also use some XYZ platform. अगर आपने मुझे पूछा कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ टू टीच द स्टूडेंट, टू कंडक्ट द क्लासेस, क्लास कंडक्ट करने के लिए मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, मेरे दिमाग में बहुत सारे, माइंड में मेरे बहुत सारे थॉट्स थे कि मैं ये यूज करूँ, मैं ये यूज करूँ. क्यों मैं ऐसा यूज मैं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद को मैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ. मुझे ट्रांसफॉर्म करने की मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है अंदर से कि नहीं, मैं ऑफलाइन में तो मैं ट्रेडिशनल जो मेरा फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो क्लासरूम में चलता है, इसके अलावा यहाँ पे तो कोई है ही नहीं. जैसा आप मेरे सामने है, लेकिन अभी मैं जो भी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो आप सामने बैठे नहीं है ना, कि मैं जब तक कि आपका वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आता. रिप्लाई कब आएगा? जब मैं कुछ पूछूं. क्लासरूम में वैसा नहीं होता है. फेस टू फेस क्लासरूम में या फिर ट्रेडिशनल ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता है. whether you are asking to your student or not asking to student, when you go from your location to their location, that means when we roam in a classroom, automatically that impacts on your student, that yes, sir, their sir, madam is attentive, and students also get attentive. यहाँ पे दोनों अटेंटिव रहेंगे. तो ये एलएमएस में हमें इसको एम्बेड कैसे करना है ऑनलाइन के लिए. मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन सिस्टम नाउ. So software, that means that LMS, it is a broad term to describe software tools. Last Sanghvi sir also described this in short LMS, and he also described various tools used in the online classes, the features of online classes, how can teacher can use that online teaching tools. So one of that teaching tool I am going to discuss with you as a learning management system. It is a software system that allows the development and delivery of educational courses using the internet as a delivery, either for e-learning or in addition to in a classroom course. Enable to plan and track learning process. What this LMS can do?
enables to plan and track learning processes, provide courses. So there are number of courses available, LMS available. We'll see that the list. That means some are open and some are paid. So we'll see that. That means just a list of that LMS. You can find various books, training events, and other content. Has the ability to register learners for courses. This is very important. कि रजिस्टर करना है, लर्नर को रजिस्टर कर लेना है. ऐसा नहीं है कि ओपन है इसका मतलब कोई भी आया और उसका वैल्यू नहीं रहती है जब तक कि आप इसको रजिस्टर ना करें. ठीक है. प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग. कौन से प्लेटफॉर्म यहाँ पे लर्निंग के लिए है? द मोस्ट केसेस वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. बहुत ये तो अभी आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ आपको इसको एलैबोरेट करने की जरूरत है. मुझे आपको सबको पता है वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ये हम अभी यूज करते हैं ऑनलाइन सिस्टम में. फिर वो 10th के टीचर हो या फिर 11th के टीचर हो, 12th के टीचर हो या फिर पॉलिटेक्निक के हो, इंजीनियरिंग के हो, ITI के, एवरीवन कैन. सर्विस तो होता है क्या? नहीं होता है सर्विस. 34 चले है क्या? अच्छा इथन ऑटो होते थे थोडंसं वेळ घेतो. ओके. बघू बंच आला ना तर मग तो ग्रुपमध्ये अटकून जातो. ठीक आहे. Facilitate, support the online activities of the person involved in teaching and learning. So this is the benefit of this platform. Support the online activities of the person involved in teaching and learning. Facilitate the administration of the access to learning content anytime, anywhere, and with any pace. Characteristics of learning platform. Presentation of learning content, creation of assignments, support the assignment, assessment, administration, and communication. I think all of you knows about all these things. These are the characteristics of learning platform. I'm just discussing with you. If you have any idea regarding this learning platform, then you can unmute yourself and discuss with us. So presentation of learning content. Learning content जो भी है, तो मैंने कहा था कि now context is a king. Context is a king. तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे context, ना कि content. लेकिन content के रिलेटेड ही तो context आएगा. तो अभी फिलहाल जो स्टूडेंट को चाहिए टीचर से क्या चाहिए? context चाहिए. कंटेंट उनके पास भी है. They are so part of this LMS nowadays. तो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी इस पर्टिकुलर इरा में हम कॉन्टेक्स्ट को एक किंग के तौर पे ही पेश कर रहे हैं. सपोर्ट द असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो देयर, कम्युनिकेशन आल्सो हैपेंस. तो 2-3 चीजें हैं यहाँ पे. CMS है, LMS है, LCMS है. आप सभी लोग इसके यूज्ड टू है या फिर हम कहेंगे इसको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लें कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और CMS और LCMS में क्या डिफरेंस है. डिफरेंस इन द सेंस वी कैन जस्ट कंपेयर इन वेरी शॉर्ट. दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ लर्निंग प्रोसेस होता है. LMS में ट्रैकिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है. वही तो CMS में भी होता है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट, वहाँ पे कंटेंट होता है. कंटेंट इन द सेंस दैट एवरीथिंग इज देयर. दैट मीन्स प्रेजेंटेशन है, ओके, डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे. जैसा यहाँ पे कल सर ने अपने संगीत सर ने बताया था कि वर्डप्रेस, तो दैट इज ऑल्सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. वर्डप्रेस दैट इज अ वेबसाइट. Joomla, exchange of content. You can exchange the content, presentation, and publishing. You can publish like this one.
तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट सेशन में जो ले रहे हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ LMS एंड CMS। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सो इंटीग्रेशन ऑफ LMS एंड CMS, so both, so this is nothing but this LCMS, लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हम यहाँ पे Moodle में इसको देखेंगे। सो वी कैन से Moodle इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू LMS एंड CMS। तो एक्चुअली हम जब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हम सेशन कंडक्ट करेंगे तब हम यहाँ पे नोमियो ये Moodle बेस्ड प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो स्टैंडर्ड्स फॉर ई लर्निंग, ILIS, दिस इज एग्जाम्पल, स्क्रम, ये हमने CMS और LMS इनमें देखना है। व्हाई वी नीड LMS, हमें LMS की क्यों जरूरत पड़ती है? सो कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रंटल टीचिंग। फ्रंटल टीचिंग ये कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट, फ्रंटल टीचिंग मीन्स फेस टू फेस टीचिंग जो होता है ऑफलाइन का कंप्लीटली ऑफलाइन होता है, तो उसको पार्शियल रिप्लेस कर सकते हैं इससे LMS में। यू कैन यूज LMS में, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि यू कैन यूज दिस LMS इन ऑफलाइन सेशंस आल्सो। ऑफलाइन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं जैसा कि मैं यूज करता हूँ। मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ट्रैक देयर प्रोग्रेस थ्रू ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज। तो आपको एक बार आपने LMS यूज कर लिया तो आपको ये आपके फिंगर टिप पे ही सब कुछ रहेगा। सो मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, आपके अटेंडेंस, स्टूडेंट के अटेंडेंस, ये सब LMS में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती रहेगी। ट्रैक देयर प्रोग्रेस थ्रू ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज, आपने जो भी एक्टिविटीज दी हैं स्टूडेंट्स को, सो दैट वी कैन ट्रैक वेदर दे कंप्लीटेड दिस टास्क और नॉट। अगर नहीं है तो उसको मोटिवेट करना है, स्टूडेंट को मोटिवेट करना है करने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, दैट मीन्स सब्जेक्ट्स एंड द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद स्टूडेंट्स। तो कोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं आप। अगर मैं आपको पूछूं क्वेश्चन तो आप इस पर्टिकुलर ऑनलाइन टीचिंग में कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो बहुत सारे टीचर्स मुझे रिप्लाई करेंगे, शायद रिप्लाई करेंगे कि गूगल क्लासरूम ये यूज करेंगे। हाँ, टीचिंग के लिए तो क्या करेंगे आप, गूगल मीट, जैसा भी यहाँ पे हमारी मीटिंग चल रही है गूगल मीट। Some teacher uses Zoom, WebEx. So these are the meeting softwares है। यहाँ पे और भी है, तो ये सिस्को ने दिया है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर LMS यूज किया तो आपको ये इसको एम्बेड कर सकते हैं उसके अंदर। आपने क्या, गूगल मीट, जूम, वेबएक्स, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं आप LMS में इसको एम्बेड कर सकते हैं टू कीप द ट्रैक ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। रीजन टू यूज LMS, ये रिपीटेशन हो रहा है एक्चुअली, अब क्या करें। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया इसका कि LMS क्यों यूज करना चाहिए, रीजन क्या है LMS यूज करने के लिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर ऑल योर ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्स डेवलपमेंट वर्क। आप जो भी ऑनलाइन कोर्स डेवलपमेंट वर्क करते हैं तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है LMS। A good LMS is the best way to track who has been given what training and when it was given. Yes, ma'am. Has anybody asking? Never in a newer LMS automatically test students to see if knowledge transfer is really occurring. That also the reason why we use LMS. A string secure LMS protects private training resources. ये प्राइवेट लोग जो भी लेते हैं प्राइवेट ट्रेनिंग रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए such as procedures and policy manuals and other sensitive files. For that purpose, this LMS can be used. That means that is one of the reason why we use LMS.
LMS software retains records and monitor learners progress. अभी आप मुझे ये बताइए बात, how many people uses Google Classroom? Anybody? Most of the teacher uses this Google Classroom. In past year, I also used this Google Classroom. Yes or no? I'm audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So please answer this question. Please, कि आप लोग कौन सा मीडिया यूज करते हैं? प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? गूगल क्लासरूम करते हैं आप लोग? हाँ या ना? Sir. Yes. यस, मैंने भी यूज किया है. तो ये गूगल क्लासरूम, you can use this Google Classroom to accept the assignments, disseminate the information to the students. You can store everything that is attached with the Google Drive, obviously. But can you suppose मैंने कुछ 4 असाइनमेंट दिए हैं, मैंने 4 असाइनमेंट दिए हैं स्टूडेंट को. क्या आप बता सकते हैं गूगल क्लासरूम में कि उसने कितने असाइनमेंट सबमिट किए हैं आउट ऑफ 4? कितने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, उसका प्रोग्रेस आप बता सकते हैं? ऐसा कोई वहां पे टूल है गूगल क्लासरूम में? होगा भी वहां पे, लेकिन उसका प्रोग्रेस बार यहाँ पर आप देख नहीं पाते कि कितना उसका प्रोग्रेस चल रहा है. उसका अटेंडेंस आप गूगल क्लासरूम पे ऑनलाइन अटेंडेंस आप देख पाते हैं. हो सकता है अगर आपने उसको एम्बेड किया है किसी और सॉफ्टवेयर के साथ, गूगल शीट के साथ अगर आपने एम्बेड किया है तो देख पाएंगे, वो भी एक लिमिटेड टाइम में, ऑनलाइन नहीं. यहाँ पर ऐसा LMS में ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रोग्रेस, लर्नर्स प्रोग्रेस यहाँ पे आपको मिलना चाहिए, सो दैट LMS कैन सेव. एक्चुअली अगर हम लेते हैं, परचेस करते हैं तो बात अलग है. अदरवाइज वी कैन से दिस वन LMS विल सेव यू लॉट ऑफ मनी व्हेन कंपेयर्ड टू द इंक्रीज्ड ट्रैवल रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम ट्रेनिंग. अगर फ्री ओपन है तो फिर ये हम क्यों सोचें? मैं इसको नहीं सोचूंगा. LMS कैन प्रोवाइड मेजरेबल रिजल्ट वेयर क्लासरूम ट्रेनिंग माइट नॉट. क्लासरूम ट्रेनिंग में ये कभी कभी पॉसिबल नहीं होगा जो LMS में ये पॉसिबल है. कुछ चीज़ें, सारी नहीं. प्रॉपरली मेंटेन LMS विल कॉस्ट वेरी लिटिल टू ऑपरेट ओवर टाइम. यहाँ पे तो टाइम जो है, ये मैंने तो मेरा टाइम मिनिमाइज कर दिया है. मतलब इफ आई एम एक्सपेंडिंग एक्सपेंड सपोज 4 hours ऑफ वीक पर वीक, तो ये मेरा रिड्यूस होकर डिक्रीज हो गया है मेरा 2 hours. मतलब 50% मेरा काम हल्का हो चुका है LMS की वजह से. सो पुट सिंपली, an LMS can leverage the knowledge of a few key individuals and distribute it to large number of employees, customers or even business partners. यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट टीचर ही हो, यहाँ पे एम्प्लॉय, कस्टमर्स, बिजनेस पार्टनर्स, इनके साथ में आप LMS यूज कर सकते हैं. तो कोलैबोरेशन टूल्स, तो इसमें क्या क्या हो सकता है LMS में? तो फोरम्स है. मैं सिर्फ आपको ये याद दिला रहा हूँ, आप सभी लोगों को ये पता है, ये सारी चीज़ें पता है. LMS आपने मतलब जो भी टीचर्स है ये इनके बिना तो अधूरे ही हैं. तो मैं सिर्फ आपको एक रिवाइज करके दे रहा हूँ और मैं एडिशनल कुछ भी नहीं कर रहा इसके अंदर. ठीक है, हम 12:30 बजे हम इसका थोड़ा सा हैंड्स ऑन सेशन जब करेंगे तब आपको एक असाइनमेंट भी सबमिट करनी है. आपको टेस्ट जो भी होगी वो भी यहाँ पर कैसे आपने टेस्ट देनी है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जब हम LMS यूज करेंगे 12:30 बजे. It allows blended learning. So blended learning, LMS allows blended learning.
encourage learners to access a learning material only and manage their learning according to their needs. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नोट्स या फिर कुछ असाइनमेंट्स या फिर आपने कुछ ऐसा मटेरियल रखा है कि वो लेना ही है. सो यहाँ पर स्टूडेंट वही ले सकता है जो उसको ज़रूरत है. सो शेयरिंग एप्लीकेशंस, ये तो गूगल क्लासरूम में भी पॉसिबल है, ऐसा कोई नहीं है. लेकिन LMS अगर आप यूज़ करेंगे, आई pretty sure that you loves that LMS, that Moodle. मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ LMS कौन से हो सकते हैं. ओपन सोर्स है और कमर्शियल है. तो ये है लिस्ट, इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने जो चुना है आज का जो भी लेक्चर है, ये हमने चुना इसको Moodle को. वैसे तो एट्यूटर बाजार, वर्डिंग टर्म मैं तो स्पेल भी नहीं कर सकता, सब कर सकता है. तो ये भी सारे बहुत सारे ओपन सोर्सेस अवेलेबल है, यू कैन यूज़ दैट. तो इससे बेनिफिट स्टूडेंट को होगा. सकाय बहुत लोग यूज़ भी कर सकते हैं, करते भी हैं, सकाय भी करते हैं. तो Moodle इज़ द वन ऑफ बेस्ट एंड पॉपुलर LMS tool combined with the CMS, LMS and CMS. Moodle can be LMS, Moodle can be CMS. और कमर्शियल में अगर गए आप तो यहाँ पे SAP एंटरप्राइज लर्निंग है, वेब सिटी है, एपेक्स लर्निंग है, ब्लैक बोर्ड इनकॉर्पोरेशन का ब्लैक बोर्ड है, ये कॉलेज है. यहाँ पर ये कमर्शियल टाइप्स ऑफ LMS है. हम डायरेक्टली थोड़ा फटाफट लेते हैं क्योंकि 12 बजे मैं इसको बंद करूँगा और 15-20 मिनट का मैं ब्रेक लूँगा. उसके बाद हम डायरेक्टली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के ऊपर चले जाते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज़ दिस Moodle? मैंने चूज़ किया है ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर टुडेज सेशन. दैट इज Moodle. व्हाट इज दिस Moodle? Moodle इसका नाम फॉर्म देखें आप तो मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट. सो Moodle, so that can be used to for online learning as well as teaching. तो ये दोनों तरफ से आप इसको देख सकते हैं Moodle को. Not only for teaching tool, it is not only the teaching tool, it is learning tool. और इसकी खासियत ये है Moodle की कि आप 75 लैंग्वेजेस में इसको यूज़ कर सकते हैं. ओवर 75 लैंग्वेजेस. अब इसमें हम कितना लैंग्वेज यूज़ करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है हमारे यहाँ पे पढ़ाने के लिए. तो यहाँ पर 75 लैंग्वेजेस और बहुत सारे कंटेंट इसके अंदर होता है. तो Moodle is a platform for online learning that enables you to create online courses, add assignments and keep eye on your students' progress. It is very important. Student progress. मैंने कहा था कि गूगल क्लासरूम में आप प्रोग्रेस देख पाते हैं, तो कैसा स्टूडेंट का प्रोग्रेस होगा, स्टूडेंट का प्रोग्रेस कैसे यहाँ पे चल रहा है, ये हमें यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं. कि अगर नहीं किया तो उसको मोटिवेट करो. तो मोटिवेट करने के लिए भी वहाँ पे कुछ हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, जैसा कि बैज यूज़ करते हैं कि वेरी गुड परफॉर्मर करके यहाँ पे हम उसको एक बैज देते हैं. तो बैज इज नथिंग बट वन पर्टिकुलर पॉइंट टू द स्टूडेंट सो दैट ही विल मोटिवेट, अदर स्टूडेंट विल मोटिवेट एंड यूज or take the various assignments, whatever the teacher gives assignments. It also allows you to communicate with the student and encourage communication between them in forum and discussion. ये forum और discussion जो section है ये आपको गूगल क्लासरूम में मिलता नहीं है. forum and discussion, आप ऑनलाइन रहे और ऑफलाइन रहे, जब भी कोई स्टूडेंट ऑनलाइन आता है, फोरम में कुछ पोस्ट करता है, तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो कि गूगल क्लासरूम में ये होता नहीं है. आई एम नॉट इन फेवर, आई एम नॉट एक्चुअली ओनली इन फेवर ऑफ Moodle, आई एम ऑल्सो इन फेवर ऑफ गूगल क्लासरूम. आई एम जस्ट कंपेयरिंग गूगल क्लासरूम विथ Moodle. क्या है प्लेटफॉर्म? Moodle क्या है? मल्टी फेसेटेड
and flexible. So it is easy to get confused and learning your way around for the first time. इसमें कंफ्यूजन की ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं है मूडल जब आप यूज़ करते हैं तो। मूडल में क्या है कि टीचर का फुल कंट्रोल होता है कोर्स की सेटिंग के। अब मैं बार बार गूगल क्लासरूम के बारे में बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 90% टीचर यूजेस गूगल क्लासरूम। मैं आई एम वन ऑफ देम, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मैंने देखा गूगल क्लासरूम में क्या सुविधा है और क्या सुविधा नहीं है, तब जाके मैंने मूडल के ऊपर स्विच कर लिया। कि वैसे तो मूडल मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट 90% इम्प्लीमेंट मैंने ये लॉकडाउन पीरियड में 1 साल पहले 1.5 साल पहले से स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मुझे कुछ बैचेस बनाने हैं, स्टूडेंट के बैचेस बनाने हैं, जैसे कि हम कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग में करते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 3rd ईयर में 5th सेमेस्टर में CPP कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है। वैसे तो माइक्रो प्रोजेक्ट भी तो होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट भी होता है। उसके बैचेस होते हैं, 4 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट, और तीनों स्टूडेंट ने एक ही प्रोग्राम बनाना है या फिर एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, माइक्रो प्रोजेक्ट बनाना है या फिर प्रोजेक्ट बनाना है। तीनों का ग्रुप, तीनों एक साथ उसको एडिट कर सकें, तीनों स्टूडेंट एडिट कर सकें, तीनों स्टूडेंट अपडेट कर सकें, तीनों स्टूडेंट सबमिट कर सकें और ये टीचर को पता चले। ये फैसिलिटी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ये गूगल क्लासरूम में मुझे नहीं दिखी, ये मुझे गूगल में दिखती है कि वहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हम बना सकते हैं। तो चॉइस ऑफ कोर्स फॉर्मेट सच एज बाय वीक, कि इस वीक में आपने क्या करना है, स्टूडेंट ने क्या करना है। बाय टॉपिक और डिस्कशन फोकस्ड सोशल फॉर्मेट, कोर्स थीम्स, फैसिलिटेट्स फोरम्स, क्विजेस। गूगल में उसको एम्बेड करेंगे आप, क्विज एम्बेड करेंगे, लेकिन दैट कैन बी शेयर्ड विद अदर स्टूडेंट आल्सो फॉर डिफरेंट पर्पसेस, नॉट फॉर फ्रूटफुल पर्पस। कुछ अलग पर्पस से उसको शेयर किया जाता है। ये मूडल में नहीं है। ये फोरम फैसिलिटेट करता है, क्विजेस आपको देता है, ग्लोसरीज, रिसोर्सेज, सर्वेज, असाइनमेंट्स, चैट्स, वर्कशॉप्स। अब जब आप ओपन करोगे इसे, आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मॉडल में मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि हम उसमें से अगर हमने 10% भी यूज कर लिया तब भी हमने 100% यूज कर लिया, ऐसे मान के चलना पड़ेगा। इतना सारा इसके अंदर फैसिलिटीज अवेलेबल होती है मूडल के अंदर। ये मूडल कोई नया चीज नहीं है, ये 15-20 साल पुराना है। स्टूडेंट कैन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, यस, यहाँ पे एक पॉइंट आया है कि स्टूडेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ग्रुप है जो कि 4 स्टूडेंट का बना है, 4 स्टूडेंट का बना है, तो ये चारों स्टूडेंट, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ये चारों एक साथ डिस्कस कर सकते हैं, एक साथ चारों स्टूडेंट सबमिट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट इसका असाइनमेंट एडिट कर सकता है, ये स्टूडेंट इसका असाइनमेंट एडिट कर सकता है, एक दूसरे का असाइनमेंट एडिट कर सकता है, चारों सेपरेट असाइनमेंट भी कर सकते हैं, चारों एक असाइनमेंट भी कर सकते हैं, और ये चारों के बीच में ही रहेगा। सो एक्सेस टू डेटा ऑन पीपल्स, इट्स स्केलेबल अप टू 10,000 मोर पीपल्स पर इंस्टीट्यूशन। 10,000 से भी ज्यादा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। Probably the most widely used LMS. It is most widely used LMS, that is a Moodle. In Moodle, a teacher has responsibility for the material in their own course. अब ये तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टीचर की कि yes, it is my material, it is my whatever the notes. They also often manage enrollments and are
able to change the layout of the course page. It is open source, it is open. तो यहाँ ओपन सोर्स नहीं है लेकिन ओपन है, तो यहाँ पर आप उसका जो पेज लेआउट है, कोर्स का लेआउट, नॉट पेज लेआउट, लेआउट ऑफ कोर्स पेज, ये आप उसको चेंज कर सकते हैं. Moodle can easily be used to communicate, means real time and asynchronous collaboration and communication tools. चैट बॉक्स है, चैट. किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर आपने मैसेज सेंड किया तो उसको ईमेल पहुंच जाता है. इट इज ईमेल इनेबल्ड, ईमेल भी यहाँ पे जाता है. सो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. और यहाँ पे कोई ईमेल, आपको ईमेल एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है. यू कैन गो थ्रू द Moodle इटसेल्फ. एक वेबसाइट बनेगी आपकी, एक वेबसाइट बनती है और वेबसाइट से Moodle की वेबसाइट बनेगी यहाँ पे, और उसके अंदर ये चैट आप कर सकते हैं. चैट भी कर सकते हैं, स्टूडेंट एक साथ एक दूसरे से, टीचर के साथ भी कर सकते हैं, और इसे मेल भी किया जा सकता है. एसेस इंटीग्रेटेड क्विजेस एंड ग्रेड बुक्स. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ग्रेड बुक. मैंने गूगल क्लासरूम में भी देखा है ग्रेड बुक, लेकिन ये जो ग्रेड बुक है Moodle की, इट इंक्लूड्स अटेंडेंस आल्सो. अटेंडेंस भी यहाँ पे अवेलेबल है. It includes this grade book along with assignments. And हम as a polytechnic teachers हमें CIANN ये फॉर्मेट हमें यूज करना पड़ता है. आप सभी लोग इसे जानते हैं. तो इसमें होता है D1, इसमें होता है D2, इसमें होता है D3, D4, D5. ये सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली Moodle में इसको ड्राइव कर सकते हैं, इसको रन करा सकते हैं ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोमेटिक. तो D1 तो आपको मैन्युअली बनाना पड़ेगा, D2 आपको मैन्युअली बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद इसको आप अपलोड करेंगे एज नॉट असाइनमेंट, एज अ कंटेंट करके इसको आप असाइन नहीं करेंगे. और D3 ऑटोमेटिक बनेगा आपका. जैसे जैसे स्टूडेंट सबमिट करते जाएंगे आपके प्रैक्टिकल, इट इज अ कंटिन्यूअस असेसमेंट. ये ऐड होता जाएगा, अपडेट होता जाएगा, नॉट ऐड, अपडेट होता जाएगा. और D4 जब भी आपका जो भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एग्जाम होगा, तब यहाँ पे आपको अपडेट आप कर सकते हैं, अभी नहीं, फिलहाल नहीं. और D5 तो अब D5 भी ऑनलाइन ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा. जैसे ये आपका PA1 और PA2 ये दोनों टेस्ट हो जाते हैं, तब यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं. सो इट मैनेजेस कोर्स कंटेंट, अपलोड कोर्स मटेरियल्स. मतलब आप ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल क्लासरूम में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स ज़्यादा हैं. लिंक टू अदर साइट ऑल्सो, एम्बेड फाइल्स एंड रिसोर्सेज, लिंक टू रिसोर्सेज एनीवेयर ऑन द इंटरनेट. So create interesting classroom environment. Classroom environment without learning HTML. अभी हम कहेंगे कि मैं तो सिविल इंजीनियरिंग में हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ, मैं इसका टीचर हूँ, उसका टीचर हूँ, मुझे तो कुछ कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, मुझे तो HTML का लॉन्ग फॉर्म भी तो पता नहीं है, मैं कैसे करूँ? नेवर माइंड, इट इज़ फॉर यू. Moodle is for you, that you can create the interesting classroom environment without knowing this HTML. आपको HTML की जरूरत ही नहीं है. Generally what happens whenever you go for the website, you need to have the knowledge of this HTML, at least HTML. लेकिन यहाँ पे आपको इसकी जरूरत ही नहीं है. You can create classroom environment, easily manage your course from year to year. एक बार आपने मैनेज कर लिया, जस्ट आप ऐड करते जाइए, सब्जेक्ट ऐड करते जाइए और उसमें, और बहुत सारे आप यहाँ पे फीचर्स देख सकते हैं. व्हाट कैन टीचर डू इन Moodle? Moodle में आप टीचर क्या कर सकते हैं? मैं फटाफट लेता हूँ यहाँ पे, देखना है हमारे पास 5 मिनट का ही है. यू कैन क्रिएट असाइनमेंट्स, यू कैन ओपन अ चैट. मैंने कहा था ये चैट भी अपन ओपन कर सकते हैं, और हम स्टूडेंट के साथ चैट भी कर सकते हैं, और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ चैट भी कर सकते हैं.
regarding the content. You can organize a choice, that means a poll, for a selection or election. अब actually this is very important thing. ये मैं इसे मतलब मैं पर्सनली इसे एज अटेंडेंस यूज करता हूं. स्टूडेंट ऑलवेज attend the class, and once they attend the class, they themselves can mark the attendance. है ना बेनिफिट. मुझे अटेंडेंस लेने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट themselves mark their attendance. आप कहेंगे अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, सर ऐसे तो कोई भी अटेंडेंस लगा लेगा जो एब्सेंट था कल. नहीं, इसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है और इसमें सिलेक्शन ऐसा होता है कि जिसने क्लास अटेंड किया है वही अटेंडेंस यहाँ पे मार्क कर सकता है. दैट इज वेरी बेनिफिशियल. तो आउट ऑफ 100 students, if 75 students mark their attendance, means blindly you can say 75 students attended your class. Very simple. You can post questions to forum. You can create one forum. You can post the questions to forum that will populate into the student group, and they can again discuss over this particular question. So question forum is there. You can create lessons. मैंने ये बहुत कम चीज़ें यहाँ पे ली हैं. वैसे तो 10% मैंने कहा था 10% ही होगा. क्रिएट लेसन्स. यू कैन डिजाइन एंड गिव अ क्विज. ये इंपॉर्टेंट है और यही आपका टेस्ट. मैं इसके ऊपर ही डिस्कस करने जा रहा हूँ 12:30 बजे आपके टेस्ट. तो इसमें ही आपको ये FDP का टेस्ट देना है. यू कैन इनिशिएट विकी. You can initiate Wikipedia. You can conduct workshop and you can keep track of all these activities and many more. बहुत सारे फैसिलिटीज, बहुत सारे फीचर्स आप Moodle में एज अ टीचर यू कैन इम्पोज. अब स्टूडेंट क्या कर सकता है वो भी तो हमें पहले इसको देख लेते हैं. इसको मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिया है. क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज, अपलोड फाइल्स एंड लेसन्स, ओपन फोरम, क्रिएट ऑनलाइन टेस्ट, एग्जामिनेशन भी लेना है, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू क्लासेस, चैट सेशंस. स्टूडेंट क्या करेगा? यस, स्टूडेंट आल्सो एनरोल द क्लासेस एट अ ग्लांस. योर एनरोल्ड क्लासेस, यू कैन सी ऑल योर एनरोल्ड क्लासेस एट अ ग्लांस. आपको दिखाऊंगा मैं कि किन लोगों ने यहाँ पर एनरोल कर लिया है. एक्चुअली मैंने ये जिम्मा मैंने खुद उठाया और मैंने सभी को एनरोल कर लिया है. अब आपकी बारी है. यू हैव टू यूज योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड एंटर इनटू माय क्लास एनवायरनमेंट. ये एग्जाम्पल है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं और हमने कुछ नाम दिया है इसका, हम देखेंगे 12:30 बजे. इंटरेक्टिव सेशन रहेगा. थोड़ा सा आपकी तरफ से भी हाँ ना हूँ हाँ चाहिए मुझे. You can work on assignment from any computer with an internet connection and compatible browser. यहाँ पे compatible browser कहा गया है लेकिन almost it uses all type of browser, all type of operating system, even mobile. Mobile uses Android, तो Android में best open होगा. इसका व्यू मोबाइल में भी देखें आप, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा. लेकिन एज अ टीचर यू कैनॉट यूज मोबाइल. यस, यू कैन यूज मोबाइल व्हेन यू आर इन ट्रैवल. आप ट्रैवल कर रहे हैं और वहां पे आप लैपटॉप नहीं यूज कर सकते, पीसी यूज नहीं कर सकते, देन यू कैन यूज मोबाइल एंड गो इन एडमिन. यूज योर पासवर्ड. यू कैन अपलोड लेक्चर्स, past lectures, future lectures, assignments. You can check your grade for assignments. मोबाइल से भी कर सकते हैं आप एज ए टीचर. लेकिन स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट कैन यूज एनी कंपैटिबल ब्राउजर, कैन चेक योर ग्रेड्स फॉर असाइनमेंट्स. स्टूडेंट देख सकेगा कि टीचर ने ग्रेड दिए हैं, असाइनमेंट्स को दिए हैं. क्विज
Student can take quiz and other tasks जो भी आप देंगे. You can contribute to forum, wikis and glossaries that your teacher establishes. This is regarding the student. Student can check your course calendar. अब ये कोर्स कैलेंडर जब भी आप अगर किसी पार्टिसिपेंट ने किसी टीचर रिस्पेक्टेड टीचर ने लॉगिन किया हो तो उसका पहले डैशबोर्ड आता है, डैशबोर्ड आएगा. सो ऑन दिस डैशबोर्ड you can found calendar. You can found calendar. Student can find the calendar. Also, on which date he or she has a lecture. जो टीचर यहाँ पे पोस्ट कर देंगे. Important dates and upcoming course event. Upcoming course event आपको नोटिस करने की देने की जरूरत ही नहीं है. Those who enrolled and log in can see all these updates. Follow the lessons, chat lessons, upload their homework and test. Student can upload their homework and test, take part into forums. हम इस पर्टिकुलर कोर्स में 12:30 बजे, बस मैं 2-3 मिनट लेता हूँ अभी, 12:30 बजे हम क्या करने जा रहे हैं. हम क्या करेंगे, पहले तो वेबसाइट क्रिएट करेंगे. अगर आप समझ गए तो वेबसाइट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वेबसाइट टू सेव द टाइम. तो वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है तो मैं आपको बताऊंगा. यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट ओवर द मॉड्यूल ओवर द Moodle under the Moodle using Nomio. Nomio is a part of this Moodle. A course is a space on a Moodle site. तो ये कोर्स सेटअप हम करेंगे. हम उसके बाद कोर्स एनरोलमेंट करेंगे. जैसा मैंने आपको एनरोल कर लिया है एज अ स्टूडेंट, आपको मैंने एनरोल कर लिया है. तो किस लिए किया मैंने, क्योंकि आपको एक असाइनमेंट सबमिट करनी है और एक टेस्ट भी आपको यहाँ पे देनी है. तो यहाँ पर ही देना है, इसलिए मैंने आपको एनरोल कर लिया है. So you also can enroll these students. Grading कैसे होता है ये हम देखेंगे. Quiz, assignments, peer assignment, assessment, workshop, branching lessons like this. Tracking progress, ये important मैंने कहा था ना. गूगल क्लासरूम में आप देखिए ट्रैकिंग होता है क्या, मैंने एक्सपीरियंस किया है, होता नहीं है. तो ये ट्रैकिंग हम देखेंगे कि Moodle में कैसे होता है. एक्चुअली इसके लिए तो बहुत पहले पुराना एक आधा वेबसाइट चाहिए, जो कि मैं मेरा वेबसाइट में दिखाऊंगा आपको. और यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रैकिंग करने के लिए, तो वो भी हम देखेंगे. सो कैन रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस. होता क्या है कि मैंने कहा था कि CPP हमारा एक सब्जेक्ट है, दैट इज कैप्स्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग. अब इसमें 4 स्टूडेंट का एक ग्रुप है और कुछ असेसमेंट करना है मुझे. तो मैं कुछ 5 का एक ग्रुप है, मेरे पास 3 ग्रुप है. सपोज ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C, मैं उनको गाइड करने जा रहा हूँ. मुझे कुछ ये जो एक ग्रुप है इनको ही मुझे कुछ असाइनमेंट देनी है. मुझे इनको देनी नहीं है, इनके साथ ही डिस्कस करना है. मुझे एक ग्रुप के साथ ही डिस्कस करना है. I can restrict from accessing that particular content by this B and C. Still they can see but cannot access. Or it can be very restrictive. Displaying certain items at certain times to certain groups or based on performance in previous tasks. So in this way, we'll perform the session. The various tasks will perform in that session. Thanks for watching. If any queries, you can ask. Otherwise, we'll go at 12:30, 15 or in between 15 and 30. 12:15 or 12:15. We'll meet at 12:15. Meanwhile, if anybody have some question, they can ask.
Thank you for watching. Thank you, Rathod sir, for your sharing your expertise on Moodle LMS tool. I hope everyone is getting involved with this LMS. If not, on during hands-on session at 12:45, 12:30, 12:15, at 12:15, you will get to know the actual hands-on practice on this LMS Moodle. Thank you very much, Dr. Sir, and we will meet at 12:15.